हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा, अगले लेक्चर में मैं डिस्कस कर रहा हूँ फैराडेज लॉ। इससे पहले मैंने जो कुछ आपको डिस्कस करा है प्लीज़ वो वीडियोस वॉच कर लीजिए, ठीक है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वी नो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस डिफाइंड एज द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी through the electrode rods within the electrolyte solution. Electrolyte solutions of an electrolyte. Positive end is anode, negative end is cathode. At anode always oxidation takes place. Oxidation means loss of electrons. जैसे यहाँ पे suppose this is the positive electrode, so negative ions were deposited on it. Negative ions deposited on the anode by the losing of one electron. जहाँ पे electrons का loss हो रहा हो बेटा वो oxidation होता है. At cathode reduction takes place. Reduction means gain of electrons. जैसे पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन विल डिपोजिट टू द नेगेटिव एंड एंड एट नेगेटिव एंड it converted to the A with the gain of one electron. So gain of electron is reduction, loss of electron is oxidation in general. And this container is known as electrolytic cell, and the process of passing of electricity through the battery within the solution is known as electrolysis process. Electrolysis process involved some laws of electrochemistry studied by Faraday's, known as Faraday's law of electrolysis. And in this case, this is the first law. According to first law is what? इन्होंने कहा कि आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज पास करोगे तो इनके जो डिपोजिटेड होने वाले मासेस हैं वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। यही स्टेटमेंट है, सुनना ध्यान से। वेट ऑफ एन आयंस और इलेक्ट्रोलाइट deposited to the corresponding electrodes, oxidation and reduction both takes place simultaneously. So जो भी weight deposited होगा ions, weight deposited to the corresponding electrode is found to be directly proportional to the amount of charge passed through the electrolyte solution. This is the statement according to this law. Amount of the electrolyte ions deposited, this is the W amount, to the corresponding electrode. अगर पॉजिटिव आयंस है तो कैथोड पे, नेगेटिव आयंस है तो एनोड पे, is directly proportional to the amount of electricity, that is Q. ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होते हैं हमेशा किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में. दिस इज द फर्स्ट लॉ. टू रिमूव प्रोपोर्शनलिटी साइन, use the symbol Z as a constant, proportionality constant. Q is the amount of charge passed, W is the weight deposited. ठीक है, and you know from physics Q is equal to I into T. If I ampere current is passed for T time, then charge becomes Q. So Q की जगह I into T लिख दिया. W is equal to Z IT, where Z is known as electrochemical equivalent constant. Z is known as electrochemical equivalent constant, and this electrochemical equivalent constant defined as the weight deposited to the electrodes when 1 ampere current is passed through the solution for 1 second. अगर मैं इस solution में 1 ampere की करंट को 1 सेकेंड के लिए पास करूंगा तो जो भी वेट डिपोजिटेड होगा, दैट इज 1 कूलम चार्ज पास करने पर जो भी वेट डिपोजिटेड होगा, दैट विल इक्वल टू द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे? ये शायद आप यहाँ ना देख पा रहे हो लाइट की शाइनिंग की वजह से. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, amount of electrolyte or ions depends to the corresponding electrode deposited to the corresponding electrode is found to be directly proportional to the amount of electric charge passed through the solution. Okay, तो बेटा ये है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, इसी से रिलेटेड सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, उसकी स्टेटमेंट देखना. पहले समझ गए होंगे, इसके न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूले से हो जाएंगे. Z को डिफाइन करना है तो देख लो. ठीक है, जो बेटा सेकंड लॉ है उसकी स्टेटमेंट क्या है पहले वो लिख लीजिए. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ करंट इज पास्ड थ्रू, equal amount of current is passed through the two or more electrolytic cell
for same time, then the weight deposited to the corresponding electrode is found to be directly proportional to their equivalent masses. इन्होंने कहा कि अगर आपके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट सेल्स हैं, जैसे एक ये हो गया, टेक अनदर इलेक्ट्रोलाइट सेल, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ करंट इज पास थ्रू द टू और मोर इलेक्ट्रोलाइट सेल. मान लीजिए इसमें आपने आई एम्पियर पास की है, ठीक है, टी टाइम तक. टेक अनदर इलेक्ट्रोलाइट सेल, उसमें भी आप आई एम्पियर की करंट सेम टाइम तक पास करो, ठीक है, आई एम्पियर करंट टी टाइम तक सेम टाइम तक पास करा जाए. तो जैसे एक इलेक्ट्रोलाइट ए बी है, इधर मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट एक्स वाई है, एक्स यहाँ पे डिपोजिटेड होगा, वाई इधर डिपोजिटेड होगा, ये एनोड है, कैथोड है. इनके कहने का पर्पज ये है कि इनके जो भी वेट डिपोजिटेड होंगे वो इनके इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होंगे. मतलब जिसका इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा होगा उसका वेट ज़्यादा डिपोजिटेड होगा. करंट दोनों में सेम पास करो, ठीक है. सो दैट मीन्स from here and here we can say the weight deposited in both the electrolytes cell is found to be directly proportional to their equivalent weights. That is, W is the weight deposited, E is the equivalent weight. तो अगर हमने टू सेल कंपैरिजन करने तो दोनों के वेट डिपोजिटेड का रेशियो, दोनों के इक्विवेलेंट मासेस का रेशियो सेम होगा, ठीक है. जब किन्हीं दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट सेल में सेम अमाउंट की करंट सेम टाइम तक पास करोगे तो इनके जो वेट डिपोजिटेड होंगे वो इनके इक्विवेलेंट मासेस के रेशियो में होंगे. फॉर एग्जांपल, सपोज दिस वन हैव Ag plus ion solution and this one has Cu2 plus ion solution. Equivalent of Ag is 108, equivalent of copper is 63.5/2. ठीक है. ये इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं ये आपको पहले भी सिखाया गया है. जिनको नहीं आता वो मुझे पर्सनल कॉल करके कहेंगे कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं. वैसे आपको बता देता हूँ, इक्विवेलेंट वेट का मतलब है उसका एटॉमिक वेट डिवाइड बाय चार्ज. एटॉमिक वेट 108 है, चार्ज 1 है, सो इक्विवेलेंट वेट 108 हो गया. कॉपर का इक्विवेलेंट वेट, कॉपर का एटॉमिक वेट डिवाइड बाय चार्ज नंबर 2. ठीक है. मेरे कहने का मतलब ये, अगर मैं इन दोनों में सेम करंट सेम टाइम तक पास करूंगा तो जिसका इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा है वो ज़्यादा डिपोजिटेड होगा, जिसका कम है वो कम डिपोजिटेड होगा. सो द वेट डिपोजिटेड इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट. दैट इज W और इक्विवेलेंट वेट का जो रेशियो फॉर वन इलेक्ट्रोलाइट, इट बिकम्स इक्वल टू द रेशियो ऑफ वेट एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ अनदर इलेक्ट्रोलाइट, लाइक दिस. और इससे फिर हम न्यूमेरिकल्स फाइंड आउट कर सकते हैं. बट दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन सेम करंट फॉर द सेम टाइम is passed through the more than two or different electrolytes. इसकी wording सुनना ध्यान से. According to the second law of Faraday, when equal amount of current is passed through two or more different electrolytes for same time, that is same charge. अगर आपने इतनी लंबी लाइन नहीं बोलनी तो आप बोल दो कि जब सेम चार्ज हम दोनों में पास करते हैं तो इनमें जो मासेस डिपोजिशन होगी क्योंकि तो पहले लॉ से क्लियर था. तो जो मासेस की डिपोजिशन होगी वो इनके इक्विवेलेंट मासेस के प्रोपोर्शनल होगी. दैट इज दिस वन. ठीक है. इक्विवेलेंट मास ऑफ द आयन कैन बी फाइंड आउट. जिसको नहीं पता वो देख लो. अगर आपने इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है तो आपके पास इसका ग्राम एटॉमिक मास या आयनिक मास होना चाहिए डिवाइड बाई चार्ज. ठीक है. बट इसकी शायद ही जरूरत पड़े. So overall, if we combine both laws, what you get? On combining first and second law of Faraday, according to first law, we get W proportional to Q, that is W is equal to Z into I into T.
According to second law, we get W proportional to equivalent weight when equal amount of current, that is when Q is constant. मतलब अगर दोनों में सेम चार्ज पास करें तो वेट इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा। अब आप वेट इज इक्वल टू जेड क्यू भी लिख सकते हो, जेड इधर भी रखा जा सकता है। तो डब्ल्यू की जगह ये वैल्यू पुट कर दो। ऑन कंबाइनिंग बोथ लॉज व्हाट यू गेट, ऑन कंबाइनिंग both laws we get ZQ is directly proportional to their equivalent weight। W की जगह ZQ रख दिया मैंने और Q कांस्टेंट है बिकॉज दोनों में करंट सेम है, सो इसको कांस्टेंट में डाल दो। सो यू गेट Z proportional to E, that is E over Z is equal to कांस्टेंट। और बेटा ये जो कांस्टेंट है इट इज नोन एज F, F मतलब फैराडे कांस्टेंट। अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें F फैराडे कांस्टेंट कहलाता है, जिसमें 1 फैराडे की वैल्यू होती है 96500 कूलम। 1 फैराडे इज आल्सो नोन एज अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये कांस्टेंट ऐसे निकाल सकते हैं। सो ओवरऑल अगर कभी आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं इससे रिलेटेड फाइंड आउट करने को तो ये फॉर्मूलेज यूज हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें W is equal to ZQ, W is equal to Z into I into T। Z की जगह आप यहाँ से E over F into I into T पुट कर सकते हो यूज्ड इन द न्यूमेरिकल्स where W is equal to the weight deposited, कितना वेट डिपॉजिटेड हुआ है, E is the equivalent weight, F is Faraday, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। ठीक है, F की वैल्यू फिक्स्ड है, इक्विवेलेंट वेट है, I करंट है एम्पियर में, T आपने टाइम लेना है सेकंड में, एंड W इज द वेट डिपॉजिटेड। तो अगर हमें ये वैल्यूज पता हो तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व आउट कर सकते हैं। F की वैल्यू फिक्स्ड है, दिस इज 96500 कूलम और जो बेटा F है फैराडे 96500 कूलम। दिस इज द बेसिकली चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, दिस इज द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये वीडियो मैं रात में बना रहा हूँ एक्चुअली, सो बाहर डॉगी भी बार्किंग्स कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज। न्यूमेरिकल्स इस पे बेस्ड होंगे। आप बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, बाकी मैं क्वेश्चन सेंड भी कर दूंगा। आप उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके एक बार देख लो, होपफुली आपको ये प्रॉपर समझ आ जाएगा। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट वीडियो आई विल सेट यू वेट इट। थैंक यू वेरी मच।